Dear students, we shall study today limit and continuity of real value functions or functions of single variable. चूंकि हम लोगों ने बात किया है, स्टार्टिंग दे रहे हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन। तो सबसे पहले सवाल नहीं होता कि व्हाट इज रियल वैल्यू फंक्शन। तो आप इससे वैसे भी अवेयर हैं, इंटरमीडिएट में आप पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी जानकारी यहाँ भी सबकी हम दे देते हैं। रियल वैल्यू फंक्शन, ये रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है इसको समझाया। ए फंक्शन f is such that yes to r, a function f is such that yes to r is said to be a real valued function if its domain set and range set both are the subset of r. A function f is such that yes to r is said to be a real valued function if its domain set and range set both are the subset of R. ये तो रियल वैल्यू फंक्शन की एक नॉर्मल डेफिनेशन है। इसके साथ कुछ चीजें और जो आप इंटरमीडिएट से परिचित हैं, वो अलजेब्रा फंक्शंस की बात करते हैं। दूसरी बात हम लोग करते हैं अलजेब्रा फंक्शंस। अलजेब्रा फंक्शंस में खाली कहते कि a function f is such that yes to r, a real valued function f is such that yes to r is said to be number one a constant function, a constant function if fx equals c for every x belongs in the domain set yes. It's said to be a zero function or a null function if fx equals 0 for every x belongs in the set S. Number 3, it is said to be an identity function if fx equals yes for every x is element of yes. ये थ्री डिफिनेशंस आपने दिया का एक फंक्शन f is such that yes to r, f is mapping from yes to r, domain set और range का डोमेन सेट में लाई करने और प्रत्येक एक्सिस के मान लिया x1 लिया, x2 लिया, x3 लिया, ऐसा बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। x1 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की इमेज है तो उसे मान लीजिए डिनोट कर देते हैं f(x1), x2 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की इमेज है उसे डिनोट करते हैं f(x2). ऐसे ही x3 की करस्पॉन्डिंग मान लिया जो फंक्शन की इमेज है वो f(x3) है, और ऐसे ही xn की करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की इमेज है वो क्या है f(x8). अब अगर डोमेन सेट में लाई करने में प्रत्येक एक्सेस के करस्पॉन्डिंग जितने भी f(x) मिल रहे हैं अगर वो सब के सब कांस्टेंट आ रहे हैं then we say that function f(x) is constant function। अगर डोमेन सेट में लाई करने वाले प्रत्येक एक्सेस के लिए जो फंक्शन की इमेजेज आ रही, फंक्शन की जो वैल्यूज मिल रही हैं, अगर वह 0 आ रहा है then we say that function is a zero function। अगर फंक्शन डोमेन में लाई करने वाले प्रत्येक
प्रत्येक एक्सेस के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की इमेजेस मिल रही हैं और सेम पॉइंट्स पर लाई कर रही हैं, तो स्वयं पर मैप कर रही हैं, this is a function is an identity function. इसी से थोड़ी सी डेफिनेशन और बात कर लेते हैं। The function f is such that h to r and g is such that h to r. अरे मैं आप फंक्शन की बात कर रहे हैं जो पता लगा आपको mapping from s to r, f is a mapping from s to r and g is a mapping from s to r. Then the sum of two functions, difference of two functions, product of two functions and division of two functions is defined as number one, sum of two functions is denoted by f plus g of x, that is equal to e of x plus gx for all x's belongs in the domain set yes. Number two, difference of two functions f minus g of x is equal to e of x minus gx for every x belongs in the domain set yes. Number three, fg of x is equal to fx into gx for every x belongs in the domain set yes. Number four, f by g of x is equal to fx upon gx division of two functions provided for any x which belongs in the set yes, gx not equal to 0. For any x belong in the set x, gx should not be equal to 0. Then sum of two functions, difference of two functions, product of two functions and division of two functions may be defined in such a manner. थोड़ा सा इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शंस की बात करते हैं। f function f is such that h to r and g is such that h to r is said to be equal if for any x, if for all x which belongs in the domain set x, fx is equal to gx for all x's belongs in the domain set x, and we write it as f is equal to c. ऑर्डर रिलेशन की बात करें तो ये कह सकते हैं कि डोमेन सेट में लाई करने वाले एक fj मैपिंग फ्रॉम s to r and gj मैपिंग फ्रॉम s to r, then the function f is said to be less than from the function g if for any x which belongs to the domain set x, for all x which lies in the domain set yes, fx is less than gx for all x's belong to the set yes, and we write it as f is less than g, or you may say in other words fx is said to be greater than gx if for all x's belongs in the set yes satisfy this condition, or you may say we can write it as f is greater than g. तो हम लोगों ने फंक्शंस में जो अभी तक रिलेशंस की बात की, ऑपरेशंस में एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फिर ऑर्डर रिलेशन की बात कर लिया टू फंक्शंस की, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर ली। ये बातें हो गई। अब बात करते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन, और डिटेल में जाते हुए लिमिट ऑफ ए फंक्शन की बात करते हैं। लिमिट ऑफ ए रियल वैल्यू फंक्शन, let fx f is such that h to y be a
real value function, real value function. Let f is such that s to r be a real value function. Then the function fx is set to tend to the limit, tend to the limit. L is element of R as x approaches to A if for an arbitrary epsilon greater than 0, there exists a positive number delta such that mod of fx minus L is less than epsilon provided mod of x minus A is less than delta and greater than 0 for every x belongs in the domain set yes. अगर fx एक रियल वैल्यू फंक्शन है, इस रियल वैल्यू फंक्शन fx की लिमिट L कहलाएगी जैसे जैसे x a पर अप्रोच करेगा. If for an arbitrary epsilon that is very small but a positive number, that is very small but a positive number, it is not equal to 0. There exists a positive number delta such that mod of x minus a is less than epsilon provided mod of x minus a is less than delta. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं fx is less than L plus epsilon and greater than L minus epsilon. और यहाँ भी for every x belongs to the set S and mod of x minus a को लिख सकते हैं x mod of x minus a is less than delta कर सकते हैं x is less than a plus delta and greater than a minus delta. तो मैं सेम इक्वेशन नंबर थोड़ा सा पहले ये समझ लिया जाए कि इसको लिखा कैसे गया है. कहीं ना कहीं आपने एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ रखा है if x is any real number for all x's for any x which is a real number, the absolute value of x is defined as absolute value of x is denoted by the moderate value of x is denoted by mod of x and it defined as mod of x equals x if x is positive. It is equal to mod of x equals mod of x equals minus x if x is negative and mod of x equals 0 if x equals 0. क्या यदि x एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो mod of x equals x, mod of पॉजिटिव रियल नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज पॉजिटिव. अगर x नेगेटिव है तो क्या जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज पॉजिटिव. क्योंकि x नेगेटिव है तो माइनस x क्या होगा, जब x नेगेटिव है तो नेगेटिव में जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह पॉजिटिव हो जाएगा. इसी को बेस बनाकर इन दोनों को डिफाइन किया गया है. देखा गया जब आप करें mod of x minus a is less than delta का है तो x भी एक रियल नंबर और a भी आर्बिट्रेरी नंबर. तो x और a को जब कंपेयर करेंगे आप तो यह भी तो हो सकता है x a से बड़ा, यह भी हो सकता है x a से छोटा हो और यह भी हो सकता है कि x a के बराबर हो. That if x is greater than a, if x is greater than तो अगर x a से बड़ा होगा तो x minus a क्या होगा, मानना पड़ेगा. अगर x a से बड़ा है तो x में से a को सब्ट्रैक्ट करें तो ऑब्वियसली x minus a पॉजिटिव और अगर x minus a पॉजिटिव होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है. तो आपने कहा कि अगर x पॉजिटिव होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ही होगा. इसका मतलब अगर x a से बड़ा है
तो x माइनस ए पॉजिटिव है, और अगर x माइनस ए पॉजिटिव है तो mod ऑफ x माइनस ए, तो mod ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज पॉजिटिव, मतलब आपको सीधे क्या लिखना है x माइनस ए। दूसरी कंडीशन में बात कर लेते हैं का इफ x हो सकता है x a से छोटा हो सकता है या x a से छोटा। तो अगर x a से छोटा होगा तो आप स्वतः सोचिए कि x माइनस a इस कंडीशन में क्या होगा। तो जाहिर सी बात है जवाब मिलेगा कि अगर x a से छोटा है और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो तो नेगेटिव आएगा, और ये निकल इसका तो x माइनस एक नेगेटिव रियल नंबर है। और यहाँ आपने कहा कि अगर x नेगेटिव रियल नंबर है तो इस नेगेटिव रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू आने पर हम माइनस से लिखते हैं, मतलब उस नेगेटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर x माइनस ए टोटली नेगेटिव है तो इसका जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे इस डिफिनेशन के अनुसार क्या मिलेंगे माइनस ऑफ x माइनस ए। लेकिन आपने यह कह रखा है कि mod ऑफ x माइनस ए की एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ भी आए वह हमेशा डेल्टा से छोटा ही होगा। इसका मतलब यह वैल्यू आया यह भी डेल्टा से छोटा होगा, ये वैल्यू आया ये भी डेल्टा से छोटा होगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं x इज लेस देन a को ट्रांसपोज कर दें, लिख सकेंगे a प्लस डेल्टा, इसको कहा गया था। यहाँ माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इक्वलिटी चेंज हो गई, तो ये लेस देन के बजाय क्या होगी ग्रेटर देन, और ये हो गया माइनस डेल्टा। या इसको हम लिख सकते हैं a को ट्रांसपोज करें तो x इज ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा हो गया, और ये गया इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों रिजल्ट कहां से मिले, इसका मतलब हुआ therefore if mod of x minus a is less than delta, देखिए mod of x minus a is less than delta का mod of x minus a अगर डेल्टा से छोटा होगा then this implies x is less than a plus delta and greater than from a minus delta। इसका मतलब mod of x minus a is less than delta को अगर हम एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे x is less than a plus delta and greater than a minus delta। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा इसी को हम लोगों ने इस तरीके से लिखे, तो ये कैसे लिखा जाता है मुझे आपको समझा दिया गया। दूसरा इसी तरीके से यहाँ भी आप कंफर्मेशन कर सकते हैं, तो हो सकता है fx l से बड़ा हो और हो सकता है fx l से छोटा हो। तो जब उसी तरीके से इसको भी साफ करेंगे तो यहाँ रिजल्ट मिलेगा कि fx लेस देन l प्लस एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन। अब ये जो आपने लिमिट की जो डेफिनेशन लिख रखी है, लिमिट एट ए पॉइंट क्या है एट x इक्वल्स to a function fx is set to tend to the limit l, tend to the limit l at a point। तो फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पर जो हम बात कर रहे हैं जिसको इस तरीके से हम लोगों ने एक्सपेंड करके निकलता है, अब वहां से समझा जाए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो सकता है। तो इसकी ज्योमेट्री को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो होता है y इज इक्वल टू fx, और यही कह रहे हैं fx प्लस टू l एज x अप्रोचेस टू a, ये आपने कहा। तो जरा से इसकी ज्योमेट्री को डिस्कस करें। x एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं और y एक्सिस, एक x एक्सिस होगा दूसरा क्या होगा y एक्सिस। y इक्वल्स fx को हम लोग प्लॉट करें, मान लेते हैं जो कर्व है यही कर्व का y इक्वल्स fx, ये कर्व हो गया y इक्वल्स fx। फिर आपने ये कह रखा पहले इसको समझाया x इज लेस देन a प्लस डेल्टा ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा। तो x इक्वल्स a प्लस डेल्टा का क्या मतलब है, तो आप ज्योमेट्रिकली ये जानते हैं कि अगर x इक्वल्स 1 कहा जाए तो x इक्वल्स 1 का मतलब होता है a line parallel to y axis at a distance a unit from the origin, ये हो गया x इक्वल्स a का मतलब। क्योंकि यह x इक्वल्स a प्लस डेल्टा, तो x इक्वल्स a प्लस डेल्टा का मतलब क्या है, x इक्वल्स a प्लस डेल्टा का मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस,
at a distance a plus delta unit from the origin। तो अगर इसको हम x इक्वल्स a मान लें, पहला तो x इक्वल्स a कितना है, इसको अगर हम x इक्वल्स a कर दें तो x इक्वल्स a का मतलब क्या, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये हो गया x इक्वल्स a प्लस डेल्टा। a को सेंटर मानकर डेल्टा डिस्टेंस राइट में और डेल्टा ही डिस्टेंस लेफ्ट, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस है। तो a प्लस डेल्टा भी ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और यह कहलाया आपका a प्लस डेल्टा। और यह क्या कहलाएगा, क्योंकि a को सेंटर मानकर राइट और लेफ्ट जा रहे हैं, तो राइट जाएंगे तो पॉजिटिव होगा प्लस, और ये लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो क्या a माइनस डेल्टा। लेकिन x इक्वल से माइनस डेल्टा का भी क्या मतलब होगा, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस at a distance a minus delta from the origin। अब आप कह रहे हैं कि x इक्वल्स x कहाँ पे लाई करा है, इन बिटवीन a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा। तो इसका भाई x यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, बट x नॉट इक्वल टू x is less than a plus delta greater than a minus delta, it means x lies in between a minus delta and a plus delta, कहीं भी हो सकता है। तो x दूसरे पार्ट को भी समझाएं, fx is less than l plus epsilon, fx is greater than l minus epsilon। लेकिन आपने कहा जैसे जैसे x a पर अप्रोच करेगा, तो x a पर अगर x ये है तो ये पर ये किधर से जा सकता है, लेफ्ट से। x अगर यह है तो x a पर किधर से आएगा, राइट से। तो जैसे जैसे x a पर चाहे लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हो चाहे राइट से अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे फंक्शन किस पॉइंट पर आ रहा है, यल पर आ रहा है। यदि द लिमिट ऑफ द फंक्शन आपके fx is set to tend to the limit यल, fx यल पर, तो यल पर अप्रोच कराइए यल fx इक्वल्स यल पर। लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ क्या लिखा है, यल प्लस एप्सिलॉन यल माइनस एप्सिलॉन। तो अगर यह यल है तो यल को fx इक्वल्स ये क्या हो गया, यल का यल को सेंटर मानकर एप्सिलॉन रेडियस में, तो यल को सेंटर मानकर एप्सिलॉन रेडियस लेंगे, तो यल एप्सिलॉन रेडियस यहाँ और एप्सिलॉन रेडियस है ये मान, ये हो गया। तो इसको क्या डिनोट करेंगे, यल माइनस एप्सिलॉन, और इसको डिनोट करेंगे किससे, यल प्लस एप्सिलॉन से, और इनको मिला दिया। क्योंकि y इक्वल टू fx आपको समझना है, y इक्वल से l प्लस एप्सिलॉन पर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट डिस्टेंस l प्लस एप्सिलॉन यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसे भी l माइनस एप्सिलॉन इसको भी मिला। अब आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एप्सिलॉन, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, एप्सिलॉन। आप ये कह रहे हैं कि अगर x a पर लेफ्ट से अप्रोच करा, तो जैसे जैसे x a पर लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे फंक्शन fx एप्सिलॉन नेबरहुड में किस पर अप्रोच कर रहा है, यल पर, और जैसे जैसे x a पर राइट से अप्रोच कर रहा है वैसे ही फंक्शन fx एप्सिलॉन नेबरहुड में किस पर अप्रोच कर रहा है, यल पर। तो जब x a पर लेफ्ट से अप्रोच करता है इसी को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और x a पर जब राइट से अप्रोच करता है डेल्टा नेबरहुड में तो उसी को हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। थोड़ा हल्का है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। तो जैसे जैसे x a पर लेफ्ट और राइट दोनों से अप्रोच करेगा वैसे वैसे फंक्शन fx एप्सिलॉन नेबरहुड में इस पर अप्रोच करेगा, यल पर। therefore यल इज नोन एज लिमिट ऑफ द फंक्शन fx as x approaches to a। किया गया था। अब ये थोड़ी सी बात तो हमने कल लिमिट ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट, और लिमिट ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट में आपने ये जरूर कर दिया कि fx अप्रोचेस टू l as x अप्रोचेस टू a, इतना समझने की कोशिश। अब जैसे लिमिट ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट को दो भागों में हम क्लासिफाइड कर लेते हैं। एक की जो आपको डेफिनेशन दिया हुआ है कि mod of fx minus l is less than epsilon provided mod of x minus a is less than delta। या इसको हम लोगों ने ऐसे भी लिखा था fx is less than l plus epsilon and greater than l minus epsilon provided x is less than a plus delta
एंड ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा। ये डिफिनेशन अभी आपने देख रखा था, इसको हमने डिफिनेशन नंबर। अगर सिंबॉलिकली इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx equals L, where L is known as limit of the function fx as x approaches to a। अब क्या इसी डिफिनेशन को हम दो भागों में क्लासिफाइड कर लेते हैं। एक डिफिनेशन दे देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब साइड में इसको हम लोग लिख देते हैं L लेफ्ट हैंड लिमिट का ए फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन fx, a real valued function fx is said to tend to the limit L as x approaches to a from the left। Left hand limit of the function fx if for an arbitrary epsilon greater than 0, there exists a positive number delta such that mod of fx minus L is less than epsilon for every x belong to the domain set S and x is less than a and greater than a minus delta। तो जरा अगर x a पर लेफ्ट से अप्रोच करे, तो x a पर अगर लेफ्ट से सिर्फ अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब x जो कुछ भी होगा a से छोटा होगा लेकिन a माइनस डेल्टा से बड़ा होगा। तो x a पर डेल्टा नेबरहुड में x a पर जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, तो क्या जरा वैसे से फंक्शन fx एप्सिलॉन नेबरहुड में किस पर अप्रोच कर रहा है, L पर, and such type of limit is known as left hand limit। Symbolically we write it as limit x tends to a minus 0 at x, ऐसे भी इसको लिखते हैं इज इक्वल टू L, या इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं f a minus 0 इज इक्वल टू a minus 0 माइनस इंडिकेट करा कि x a पर लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, या यहाँ से भी समझ सकते हैं कि x इक्वल्स a पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट L, ऐसे भी हम डिनोट करते हैं। ऐसे ही जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, कहेंगे द फंक्शन fx is said to tend to the limit L from the right, from the left करने के बजाय क्या बोलेंगे, from the right, as x approaches to a from the right, if for an arbitrary epsilon greater than 0, there exists a positive number delta such that mod of fx minus L is less than epsilon for every x belong to the domain set S and x is less than a plus delta and greater than e। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली अगर लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a plus 0 fx is equal to L, या इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं f a plus 0 is equal to L, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिएगा दो डेफिनेशन, पहले तो लिमिट ऑफ द फंक्शन की डेफिनेशन दिया गया। लिमिट ऑफ द फंक्शन की डेफिनेशन में सिंपली ये कहा गया कि किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन की लिमिट एक रियल नंबर L कहलाएगी यदि x a पर लेफ्ट से अप्रोच करे और राइट से अप्रोच करे। मतलब सीधे सीधे आपने कहा था f फंक्शन fx is said to tend to the limit L
as x approaches to a, if for an arbitrary epsilon greater than 0, there exists a positive number delta such that mod of fx minus L is less than epsilon, provided mod of x minus A is less than delta. का सिंबॉलिकली इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट अपने राइट हैंड लिमिट फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट की डिफिनेशन देते समय आपने ये कहा a function fx is said to tend to the limit l from the left from the right to the from the left as x approaches to a from the left if for an arbitrary epsilon greater than 0 there is a positive number delta such that mod of fx minus a is less than epsilon provided x is less than a and greater than a minus delta. जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ x एप्सिलॉन नेबरहुड में एक बार लेफ्ट से डेल्टा नेबरहुड में एक बार सिर्फ लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है इसलिए आपने कहा कि x is less than a but greater than a minus delta. और का सिंबॉलिकली लिखना हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a minus 0 fx इक्वल टू या लिमिट x टेंड्स टू a minus 0 fx के बात से लिख लेते हैं f के minus 0 जिसे समझ जाते हैं कि फंक्शन का fx इक्वल्स x a पर x इक्वल्स f फंक्शन fx का x इक्वल्स a पर लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं ऐसे ही जब राइट हैंड लिमिट की आप बात करते हैं कह रहे हैं फंक्शन fx is said to tend to the limit l from the right from the left बोलने में क्या बोल रहे हैं from the right as x approaches to a from the right if for an arbitrary epsilon greater than 0 there exists a positive number delta such that mod of fx minus L is less than epsilon for every x belongs to S and x is less than a plus delta and greater than a. Or you may write in symbol limit x tends to a plus 0 fx equals a L और f a plus 0 is equal to L. limit x tends to a plus 0 या fx को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या a plus 0 से भी डिनोट कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मतलब कैसे कहा जाएगा कि दिए गए फंक्शन का लिमिट तो दिए गए पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो लिमिट ऑफ द फंक्शन मतलब एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करेंगे तो छोटा सा ये भी है एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट ए पॉइंट कई रियल वैल्यू फंक्शन fx जिसकी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं for every x belong to this set s if f is such that s to r then the function fx is said to tend to the limit l as x approaches to a. तो किसी फंक्शन की x इक्वल्स a पर लिमिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो कह रहा है उस फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to l. जब हम ये बात बोल रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to l इसका फंक्शन fx का x a पर अप्रोच कर रहा है. जब ये नहीं कहा जा रहा कि इधर से इसका x a पर लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहा है और राइट से भी अप्रोच कर रहा है. जब x a पर लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट से अप्रोच करेगा राइट हैंड लिमिट. इस तरह से जब सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू a fx तो इतनी सी बात से क्लियर हो जाना चाहिए फंक्शन fx का x इक्वल्स a पर लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें इन्वॉल्व है और राइट हैंड लिमिट और दोनों क्या रहा है या का एक एंड ओनली मतलब दिए गए फंक्शन का x इक्वल्स a पर लिमिट यही कहलाएगा. तो एग्जिस्ट कर रही लिमिट उसके लिए आपको सबसे पहले दिए गए फंक्शन का x इक्वल्स a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और x इक्वल्स a पर दिए गए फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. अगर दिए गए फंक्शन fx का x इक्वल्स a पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और x इक्वल्स a पर राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है और एग्जिस्ट ही ना कर रहा है एग्जिस्ट करने के साथ साथ ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तब जाकर हम बोलते हैं मतलब फंक्शन का fx का रियल वैल्यू फंक्शन fx का x इक्वल्स a पर लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल्स a पर राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं
और दोनों इक्वल आए, then we say that limit of the function exists at that point. लेकिन कहीं ऐसा हो कि फंक्शन f(x) का दिए गए फंक्शन f(x) का किसी पॉइंट मान लीजिए x इक्वल्स a ही है, फंक्शन दिए गए फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन f(x) का x इक्वल्स a पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, मान लीजिए 1 आ गया, x इक्वल्स a पर ही फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकाला, मान लीजिए वो -1 आ गया। तो यहाँ पर फंक्शन f(x) का x इक्वल्स a पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 1 आ रहा है, उसका एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। x इक्वल्स a पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसका अस्तित्व क्या रहा है, -1। लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि लिमिट ऑफ द फंक्शन है। ये सही है कि फंक्शन f(x) का x इक्वल्स a पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन f(x) का x इक्वल्स a पर राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, फिर भी एग्जिस्ट करते हुए भी ये दोनों इक्वल नहीं है, then we say that limit of the function does not exist। लेकिन अगर दिए गए फंक्शन f(x) का x इक्वल्स a पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करने पर मान लीजिए वो 2 है, फंक्शन f(x) का x इक्वल्स a पर राइट हैंड लिमिट निकाला गया, वापस सेम पॉइंट पर 2 ही आया, इसका मतलब पहला नंबर तो फंक्शन का x इक्वल्स a पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और चूंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं, then we say that limit of the function exists at x equals a। ये तो था लिमिट ऑफ द फंक्शन की एग्जिस्टेंस की बात। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी की बात, और फिर जो कंटिन्यूटी की बात करने के बाद इस पर हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट। अगले टर्म पे हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन में हम लोग बात करेंगे कॉसेज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पर बात करेंगे, जनरल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की बात करेंगे, फिर कंटिन्यूटी होती कब है ये भी डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ फिर हम लोग कंटिन्यूटी इन द डोमेन क्या होता है, कंटिन्यूटी इन द ओपन इंटरवल क्या होता है, कंटिन्यूटी इन द क्लोज इंटरवल क्या होता है, और फिर इसके साथ क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। थैंक्स।